चलिए जी, मैंने बताया है ईच मेडुलरी पिरामिड हैव मेनी नेफ्रॉन्स. All nephrons of medullary pyramid pours into renal papilla. हर मेडुलरी पिरामिड जो है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं और सारे नेफ्रॉन्स एक रीनल पेपिला में आ जाते हैं. ठीक है, फिर है रीनल पेपिला ओपन्स इनटू माइनर केलेक्स. देयर आर अबाउट 7 to 13 minor calyx in each kidney. All minor calyx fuse to form 2 to 3 major calyx, and all major calyx opens in renal pelvis of ureters. ठीक है बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं? अलग अलग बताऊंगी बेटा, मैं बातें करोगे तो जल्दी से. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या है? नेफ्रॉन. दिस इज कप शेप्ड Bowman's capsule. This is PCT. Highly convoluted. Convoluted का मतलब होता है highly folded. ये है cup shape Bowman's capsule. This is PCT. Full form है proximal convoluted
ट्यूब्यूल, उसके बाद देन देयर इज प्रेजेंट थोड़ा सा फोकस कर लेना बेटा। This is descending loop of Henle. This one is ascending loop of Henle. This is DCT. DCT means distal convoluted tubule. This is collecting tubule, and this is collecting duct. This is the structure of nephron. ठीक है जी, करें, लिखें आगे थोड़ा सा। रिया हो गया बेटा, अवनीत हो गया।
So write down human excretory system. Human excretory system consists of human excretory system consists of one pair of kidneys. One pair of kidneys, comma, one pair of ureters, comma, one urinary bladder. कर लो one pair of kidneys, comma, one pair of ureters, comma, one urinary bladder and a urethra. Urethra. Next point आ जाइए. Each kidney is bean shaped. Each kidney is bean shaped. BEAN. Bean shaped, comma, reddish brown in color. And situated between last thoracic and third lumbar vertebra. Between last thoracic and first lumbar vertebra and third lumbar vertebra. I'm sorry. Third lumbar vertebra. Next point है kidneys are protected by floating ribs. Kidneys are protected by floating ribs. Next point है kidneys are surrounded by peritoneum. Kidneys are surrounded by peritoneum only on the back sides या dorsal sides एक ही बात है. पीछे वाली साइड जो है on the dorsal side और back side. Thus काजल मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. किडनीज आर सराउंडेड बाय पेरिटोनियम ओनली ऑन द बैक साइड और डोर्सल साइड, कॉमा, दस किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल, RETRO, रेट्रो पेरिटोनियल, PERITO. डोर्सल की जगह बेटा वेंट्रल लिखो, बैक साइड और वेंट्रल साइड. ठीक करो थोड़ा सा, डोर्सल साइड नहीं वेंट्रल साइड, बैक साइड और वेंट्रल साइड. 10 किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो RETRO, रेट्रो पेरिटोनियल, PERITONEAL, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन. नेक्स्ट है जी, ईच अडल्ट ह्यूमन किडनी मेजर्स, ईच अडल्ट ह्यूमन किडनी मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये आपका एनसीईआरटी का, इसलिए स्टार डाल के लिख लेना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, कॉमा, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, and 2 to 3 centimeter in thickness.
नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज वेट 120 to 170 grams. Average weight 120 to 170 grams. Next point है they are present in the anterior part of the abdominal cavity. They are present in the anterior part of the abdominal cavity. द कनकेव साइड जो कर्व्ड है ना, अंदर वाली साइड कर्व्ड है. द कनकेव साइड ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज हाइलम. द कनकेव साइड ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज हाइलम. थ्रू विच ureters nerves and blood vessels enter in the kidney. Through which the ureters, nerves and blood vessels enter in the kidney. ठीक है. उसके बाद किडनी की कितनी प्रोटेक्टिव लेयर्स है आप बता देंगे कि नहीं? 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स है. रीनल फेशिया, रीनल फैट एंड रीनल कैप्सूल. रीनल फेशिया एंड रीनल कैप्सूल वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड मिडल रीनल फैट इज फॉर्म्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू. ठीक है, ये तो बता देंगे, ये तो डायग्राम में है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स. ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू outer cortex and inner medulla. Outer cortex and inner medulla. The cortex is dark region. And the medulla is lighter region. नेक्स्ट है मेडुला इज डिवाइडेड इनटू 15 to 16 conical regions called as medullary pyramids. Conical regions called as medullary pyramids. नेक्स्ट पॉइंट है द कॉर्टेक्स extends in between medullary pyramids and are called as renal columns of Bertini. Renal columns of Bertini. BERTINI. Next point है each kidney has nearly 1 million nephrons. 1 million nephrons. Each nephron has 2 parts.
each nephron has two parts. Malpighian corpuscle, Malpighian, Malpighian corpuscle, and renal tubule. Malpighian corpuscle comprises of glomerulus, बेटा यहाँ पे एक मिनट ये ठीक कर थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, जो ठीक है वो तो बाद में। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ, यहाँ पे लिखो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वही लिखेंगे, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। फुल स्टॉप करके द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद, ठीक कर लो, ये काट दो जो भी लिखा है। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद बोमेन्स कैप्सूल, begins with Bowman's capsule, which encloses glomerulus, Next point है glomerulus along with Bowman's capsule, glomerulus along with Bowman's capsule is called as renal corpuscle, और Malpighian body, renal corpuscle और Malpighian, Malpighian, Malpighian body. Next point, the renal tubule further consists of, ये जो हमने डायग्राम बनाया ये देखते चलो। The renal tubule further consists of highly convoluted PCT की फुल फॉर्म अब आपको पता है, highly convoluted PCT, comma, hairpin like Henle's loop, hairpin, HEIR, hairpin like Henle's loop, comma, highly convoluted tubule, highly convoluted part called as DCT, comma, and the last part of DCT called as collecting tubule. And the last part of the DCT called as collecting tubule. Full stop करके many collecting tubules opens in collecting duct, फिर एरो डाल के लिखो रीनल पेपिला, मतलब कलेक्टिंग डक्ट्स खुलती है रीनल पेपिला में, एरो डाल के लिखो रीनल पेपिला। रीनल पेपिला के बाद एरो डालो माइनर केलेक्स, फिर एरो डालो मेजर केलेक्स,
फिर एरो डालो, पेल्विस ऑफ यूरेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द माल्पीजियन कॉर्पसल। नेफ्रॉन का डायग्राम भी देखते रहना। माल्पीजियन कॉर्पसल, कॉमा पीसीटी एंड डीसीटी, पीसीटी एंड डीसीटी of the nephrons are situated in cortical region and the loop of Henle are present in the medulla. And the loop of Henle are present in the medulla. अब डायग्राम देखो नेफ्रॉन का, अपनी कॉपी में देखो जरा। बोमेंस कैप्सूल आपको दिख रहा है, पीसीटी दिख रहा है, डीसीटी ये कॉर्टेक्स रीजन में है, और जो लूप ऑफ हेनले है जो नीचे को लटक रहा है ये प्रेजेंट होगा मेडुला रीजन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लो और यहाँ पे लिख लो ग्लोमेरुलस। Glomerulus consists of a network of capillaries. Glomerulus consists of a network of capillaries formed by division of afferent renal arteriole. Afferent renal arteriole। हाँ लिखो लिखो, बनाना भी है, लिखना भी है। मैं दोबारा से बता देती हूँ। Glomerulus is the network of capillaries. Glomerulus is the network of capillaries present in the cavity of Bowman's capsule. Present in the cavity of Bowman's capsule. Full stop करके। Glomerulus is formed by division of afferent renal arteriole. Division of afferent renal arteriole. And all the capillaries of glomerulus further join या later join to form efferent renal arteriole. Efferent renal arteriole। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए बेटा,
types of nephrons. Types of nephrons. There are two types of nephrons. Cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. एट्टी % जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और सिर्फ 20% जो है there are only 20% nephrons which are juxtamedullary. Cortical nephrons have short loop of Henle. They have short loop of Henle. Juxtamedullary nephrons have long loop of Henle. क्योंकि इनमें लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है बेटा, therefore whole of nephrons, cortical nephrons, are located in renal cortex. इनका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, their loop of Henle extends, or you can say hangs down in renal medulla. और यहाँ पे आगे चल के हम करेंगे, समझ में आएगा, बट यहाँ पे लिख लो, do not play any role in water conservation. Do not play any role in water conservation. और ये वाले जो है, these are meant mainly for water conservation. ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। तो जो ग्लोमेरुलस में देखो बेटा, रीनल, एफरेंट एंड
इफरेंट आर्टीरियोल, देखो जरा ध्यान से देखो, कोई भी है, चाहे अंदर आ रही है चाहे बाहर जा रही है, इट्स आउटर वॉल is composed of smooth muscle cells. And inside, this is endothelium. These are स्मूथ मसल सेल्स और अंदर है एंडोथीलियम। यहाँ पे दूसरी चीज, एक ध्यान से सुनो मेरी बात, बेटा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स दे कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिव रेनिन, सारे नहीं, सभी स्मूथ मसल सेल्स नहीं, सम कंसिस्ट्स ऑफ, these are inactive renin granules. Such smooth muscle cells are called as juxtaglomerular cells, JGC. Those smooth muscle cells which has inactive renin granules are called as juxtaglomerular cells या JGC. और यहाँ पे क्या है? This is blood. ये चाहे एफरेंट आर्टीरियल है चाहे इफरेंट आर्टीरियल है। हो गया बच्चों? हो गया।
ये आ गया रीनल एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। सेकंड आ जाता है बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज लाइंड बाय, लिख लो पहले, लाइंड बाय एंडोथीलियम। lined by endothelium only, which has small pores called as fenestra. These have small pores called as fenestra. Outside endothelium, there is present basement membrane. There is present basement membrane, which is formed of proteins and carbohydrates. Proteins and carbohydrates. The fenestra and the basement membrane helps in filtration of blood. सारा ब्लड नहीं फिल्टर करता, उसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिल्टर कर जाते हैं। The fenestra and basement membrane helps in filtration of blood. उसके बाद आ जाता है बेटा बोमेन्स कैप्सूल। बना लो। क्लियर नहीं है? हो गया? एंडोथीलियम के बीच में पोर्स है जिसको बोल देते हैं फेनेस्ट्रा, और बाहर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अंदर वाली एंडोथीलियम, उसके बीच में जो पोर्स है दैट इज फेनेस्ट्रा, और उसके बाहर है बेसमेंट मेम्ब्रेन।
हो गया जी। चलो दूसरी तरफ फोकस करो। Women's capsule. It is a hollow, double membrane structure. करो करो, ऊपर करो। नहीं हो रहा? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हंसो मत, हंसो मत, ध्यान दो बस इधर। ये देखिए, ये इसकी अंदर वाली लेयर जो है, दिस इज पेराइटल मेम्ब्रेन। एक मिनट, नॉट इनर वाली, आई एम सॉरी, दिस इज आउटर पेराइटल मेम्ब्रेन एंड इनर इज कॉल्ड एज visceral membrane. Outer is called as parietal layer या parietal membrane. Inner is called as visceral membrane. जो parietal layer है, it is formed of squamous epithelium. Parietal layer जो है, it is formed of squamous epithelium. और जो विसरल लेयर है, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होनी है ना, यही से ही तो फिल्ट्रेशन होनी है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। Composed of specialized cells called as podocytes. These are podocytes. These are foot processes. And this, the space between podocytes are called as slit pores. These are called as slit pores. And on the outer side, there is present basement membrane. इधर देखो जरा, बनाना बाद में, पहले इधर देखो जरा। ये क्या है? ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये पोडोसाइट्स है, जिसके बीच में स्लिट पोर्स है। ठीक है, ये पोडोसाइट्स है। ठीक है कि नहीं? दिख रही है आपको? ठीक है।
यहाँ पे लेट अस से हम एक ब्लड कैपिलरी की बात कर रहे हैं। दिस इज वन ब्लड कैपिलरी। एक मिनट बच्चे, हेलो बेटा, अभी 10 मिनट लगेगी, तुम वही रुको, ठीक है? ओके। ये ब्लड कैपिलरी है बेटा। ब्लड कैपिलरी में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो दोनों की इकट्ठी हो गई। थोड़ा सा मैं लूज करके बनाती हूँ। लेट अस से ये एक ब्लड कैपिलरी है। दिस इज एंडोथेलियम। ये फिनेस्ट्रा आपको नजर आ रहा है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? इसी तरह से ये भी एंडोथेलियम है। थोड़ा सा फोकस कर लो, ठीक है? तो अब आप क्या देख रहे हो? ध्यान से देखो इधर, ध्यान से, कि ब्लड कैपिलरी की दिस इज एंडोथेलियम। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और फिर है पोडोसाइट्स। These are podocytes। देख रहे हो आप? ठीक है, तो ये देखो एंडोथेलियम, ये ब्लड है, दिस इज ब्लड, और ये है कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है? तो दिस मेम्ब्रेन, जिसमें क्या है? एंडोथेलियम, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है पोडोसाइट्स। द थ्री टुगेदर फॉर्म्स fertilization, sorry, not fertilization, I'm sorry, filtration membrane। This is called as filtration membrane, ठीक है? एक एक करके आराम से बना लो, पहले बोमेन्स कैप्सूल का, फिर अलग अलग से बना लो।
हो गया बच्चों? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पता चल गई? एंडोथीलियम के बीच में जो पोर्स है दे आर स्लिट पोर्स, और जो पोडोसाइट्स के बीच में सेल्स जो स्पेसेस है दे आर स्लिट पोर्स। नहीं, एंडोथीलियम के बीच में फेनेस्ट्रा, आई एम सॉरी, एंडोथीलियम के बीच में फेनेस्ट्रा और पोडोसाइट्स के बीच में स्लिट पोर्स। पीसी क्या लिखा है? पोडोसाइट्स। पीसी इज पोडोसाइट्स। बीसी मतलब Bowman's capsule, podocytes. हो गया? चल जल्दी से लिख लो, फिर तुमने धूप भी सेकनी होगी। अगर धूप है तो जल्दी चुप कर जा। सनलाइट है। सनलाइट है? तू कहाँ पे है? मुझे तो दिखाई नहीं। मैं पानी पी के हूँ। ये तो बड़ी गलत बात है, इधर हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। मैं शैडो। मैंने तो इनको जूम किया हुआ था। मैं पानी पी के हूँ। रुक जा, बस खत्म करने वाली हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया करके जाना, उसके बाद जाना। फटाफट से 2-4 लाइनें लिखनी है, ज्यादा नहीं। चलिए। द वॉल ऑफ पीसीटी, द वॉल ऑफ पीसीटी is composed of cuboidal brush bordered epithelium, cuboidal brush bordered epithelium having lot of villi and microvilli, having lot of villi and microvilli, which helps in increasing surface area for absorption, which helps in increasing surface area for absorption. नेक्स्ट आ जाइए लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। Loop of Henle is also lined by cuboidal epithelium, with few villi and microvilli. यहाँ पे थोड़े होते हैं, with few villi and microvilli.
उसके बाद है डीसीटी, डीसीटी क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद मैनी विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई। मैनी विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई। फिर है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, lined by cuboidal and columnar epithelial cells. Collecting tubule, lined by cuboidal and columnar epithelium. ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट, कोल्यूमिनर एपिथेलियम। कलेक्टिंग डक्ट लाइंड बाय कोल्यूमिनर एपिथेलियम। लास्ट टॉपिक है आज का, छोटा सा है, ब्लड सप्लाई टू द किडनीज। ब्लड सप्लाई टू द किडनीज। सबसे पहले आ जाता है बेटा डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा से अराइज होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी enters in kidneys या kidney and divides into many renal afferent arteries. They divides into glomerular capillaries, which further join to form efferent renal arteriole. It divides to form network of पेरीट्यूबुलर, ये मैं अभी बना के दिखाऊंगी, कैपिलरीज अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी एंड दूसरा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अलोंग loop of Henle called as vasa recta. Both of these joints to form renal venule. Many renal venules
fuse to form renal vein. ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा फोकस कर लो बच्चे इधर। मैं करूँ क्या? चलो यहाँ से बेटा देखो, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन बता रही हूँ। दिस इज efferent renal arteriole. मैंने ये बाहर आ गया बोमेंस कैप्सूल से। इट डिवाइड्स टू फॉर्म a network of capillaries around, ये इस तरह से अराउंड PCT। एक इसकी ब्रांच जो है एक इधर चली गई, एंड देन देयर इज नैरो। ये मैं तुम्हें स्ट्रेट दिखा रही हूं, बट ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अलोंग वासा रेक्टा। कैपिलरी लूप है, बहुत सारी कैपिलरीज है, जिसने क्या बना दिया, दिस इज वासा रेक्टा। और फाइनली ये सब कैपिलरीज फ्यूज होके किसमें डाल देंगे, दैट इज रीनल वेन। समझ आ रही है बेटा आपको? ये चीज समझ में आई कैसे है पेरी? ये क्या है, ये जो कैपिलरी लूप बनाया है, दीज आर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और ये है वासा रेक्टा। ठीक है। और एक चीज और बताओ, ये लिख लिया आपने सारा है ना? वो बना लेना, बट एक चीज और समझ लो फिर आप बनाना। एक है बेटा रीटिया मिराबिलिया। It is a system in which arteriole divides to form capillaries, which again fuse to form arteriole instead of venule. एफरेंट आर्टीरियोल आया, मेरी बात सुनो, नहीं तो कैपिलरीज फ्यूज करके क्या बनाती है, वेन्यूल या वेन बनाती है ना।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल आया, ग्लोमेरुलस बना, फिर इफ्रंट आर्टीरियोल आ गया, इफ्रंट वेन्यूल नहीं आया, वो फिर इफ्रंट आर्टीरियोल आ गया, बिकॉज इन वुमेन्स कैप्सूल there is filtration of wastes only, no exchange of gases. Therefore, blood of efferent arteriole has same amount of oxygen and carbon dioxide as that of efferent arteriole. कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ है बोमेंस कैप्सूल में, वहां पे सिर्फ क्या हुआ है, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट्स। हाँ जी बेटा, मैं पानी पी लिया। हाँ अब जाओ। अब बेटा आपके पास ऑल स्टूडेंट्स हैव 15 मिनट्स। जसलीन एंड गुरलीन 15 मिनट के बाद 12 बजे एग्जैक्ट सबको अंदर ले आना है, ठीक है स्टूडेंट्स? यस फीस अपनी धवन सर को, जो स्टूडेंट्स फीस लाए या धवन सर को दे देना, और इन केस धवन सर नहीं हुए इस टाइम तो हॉस्टल में जो फिजिक्स वाले सर हैं उनको फीस दे देना। एंड मंडे सेम, कल की छुट्टी हम करेंगे, ठीक है? रिलैक्स, ये पढ़ के आना, ठीक है? मंडे को बॉयज आप भी सुन लो बेटा, शेड्यूल मेडिकल वालों का 9 से है, 9 to 11 बायोलॉजी, 11 to 1 फिजिक्स एंड 1 to 3 मैथ्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। पता चल गया बच्चों? ठीक है, चलो करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हाँ जी बच्चे, पूछना कुछ? हाँ मम्मा खाना नहीं खाएगा और भी आज की क्लास और अटेंड करनी है और मैं लाइक खा के आई हूँ। मुझे लगा कि यार बायो की क्लास ही करनी है आज, क्योंकि वो चैप्टर सा कह रहे थे ना आज खत्म हो जाएगा। बेटे थोड़ी देर ऐसे कर, थोड़ी देर अटेंड कर ले, घंटा का अटेंड कर ले, ठीक है? थोड़ा सा अटेंड कर ले फिर चले जाना। मैं सर को कहती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा पिछला भी करा देंगे, थोड़ा सा अटेंड कर ले, ठीक है? थोड़ी सी हिम्मत रख, ये सोच मैंने व्रत रखा है आज। रखती तो मैं भी नहीं, पर खाया मैंने भी नहीं है बेटा सुबह से कुछ, पर मेरा